Shall I wait और shall I start? आज तो प्रैक्टिकल क्लास होनी थी और मुझे लगा था कि सबके सब आएंगे. मैम प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीकेंड आई विल बी देयर, सो प्रैक्टिकल एक बार तब भी करें बिकॉज आई एम कमिंग सैटरडे संडे आई विल बी देयर. इट्स गोना हेल्प मी अगर सामने थोड़ा आपके साथ इफ आई कैन डू सम प्रैक्टिकल्स. हाँ, that would be better. ठीक है, नेक्स्ट वीकेंड के लिए प्रैक्टिकल पोस्टपोन करते हैं. Others are, I hope they're not disappointed. There are only 3 students in the class. Oops. This is Let's go. Well, by the way, I'm actually in Bhagalpur. So I'm from Bangalore to Kolkata, and from Kolkata to Bihar, and then Bihar to Delhi. I was thinking कि meeting है तो next week बोला था. हाँ नहीं, I went to Kolkata. Traveling to Delhi via Calcutta. I thought कि halt होगा flight में. नहीं, that's a halt for 5-6 days. In between 2 days in Bihar, and then I'm coming back to Kolkata and then Delhi, finally. Okay, great. So we will be meeting next weekend. I have ordered all the good books for you. Yes. Ma'am, also the ring and the magnets. I'll need more magnets. Yeah. Still in my stock. Okay. You will Okay. know Sure. where it is. Sure. Okay. Let's see some principles or some facts about the acupressure. What is acupressure actually is. Like, do you understand what is life? I would say life is, the principles of acupressure is based on the principles of life. और लाइफ क्या है इसको समझना बहुत मुश्किल है. See, what do we see? In the center is the sun. Okay? और उसके सराउंडिंग में planets are moving. रिकॉर्डिंग कर दिया मैंने. On. See, the planets are moving around it like this. So everything is goal, circle. And circle means 360 degree. Okay? No matter you look at the sun from this angle, you look at the sun from this angle, you look at the sun with this angle. You know, the earth is moving 360 degree. Isn't it? It is revolving and your rotation is all 360 degree. Okay? This means it has a multi-dimensional energy. Do you agree with this? The Brahmand has a potential of 360 degree multi-dimensional energy, है ना? जिसकी वजह से पूरा कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, कंटिन्यूसली क्रिएशन होता जाएगा, continuously life move on hota jayega. Now somebody like looks at it from this angle. Okay, he would describe the world from that angle only. Okay, अगर किसी ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ा हो तो एक चार्ट को ना 9 डायमेंशंस में देखा जाता है. D1 चार्ट होता है, D2 चार्ट होता है, D9 चार्ट होता है. प्रोफेशनली देखना है तो D9 देखेंगे, किसी की पर्सनालिटी के बारे में जानना है तो D1 देखेंगे. तो देखो 9 डायमेंशंस एस्ट्रोलॉजी में एक बंदे की लाइफ को स्टडी करने के लिए. ओके, तो आप जो है कुंडली को जिस एंगल से देखोगे उस हिसाब से उसको उसके बारे में बताओगे. और एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजी कौन होगा जो कि सारे डायमेंशंस को देख के फिर प्रेडिक्शंस देगा. एग्री? ठीक है, इसी प्रकार से जो है आप एक्यूप्रेशर को देखोगे,
अगर वो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है तो वो डिफरेंट डायमेंशन से लिया गया है राइट। आप चाइनीज एक्यूप्रेशर देखोगे वो डिफरेंट डायमेंशन से लिया गया है, बट जो है रिजल्ट दोनों ही देता है। आपको जो प्रेफरेबल हो, जो कंफर्टेबल हो, आप उसी पर काम करो, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इवन आई एम अ मल्टी डायमेंशनल एनर्जी। कैसे? आई वॉज born एज अ डॉटर, grew up as a daughter, born and brought up as a daughter, ठीक है। फिर मैंने प्रोफेशनली अपना लाइफ चूज किया, लाइन चूज किया, फिर मेरी एक आइडेंटिटी प्लस हो गई, शी इज दिस। ओके, एक्यूपंक्चर तो बहुत बाद में आया लाइफ में, शी इज दिस। देन आई गॉट मैरिड, ठीक है। अब मेरी आइडेंटिटी कितनी चेंज हो गई ना। फॉर माई ब्रदर इन लॉ I'm different. For my in-laws, I'm different. For my husband, so I'm playing a multiple roles now. My role as a daughter, my role as a wife, my role as a sister, my role as a sister-in-law. You know, then I became a mother, so एक और role add on हो गया, being as a mother. Okay, and without getting into any trouble, I'm playing all the roles. है ना। तो क्या मैं अमिताभ बच्चन से कम हूँ? मुझे पता है कि यहाँ पे नाउ बीइंग अ टीचर आई एम प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, बीइंग अ हीलर आई विल प्ले अ डिफरेंट रोल। तो मेरी मल्टी डायमेंशनल एनर्जी है कि नहीं है ना। अब मैं अपने आप को जहां प्लेस करूंगी, मैं उस एंगल से ही काम करूंगी। एग्री? ओके, दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन जयश्री। लाइक यू वर सेइंग मुद्रा डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, यूनानी मेडिसिन डिफरेंट, होमो दिस होम्योपैथी इज डिफरेंट है, मॉडर्न साइंस डिफरेंट है। जो जहां जिस एंगल से काम कर रहा है उस एंगल से देख रहा है। एक ना नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ना चाइना को देखेगा मेरा दुश्मन है, पाकिस्तान को देखेगा मेरा दुश्मन है। एक सच्चा संत जो होगा ना, वो ये कहेगा मुझे इसमें भी ईश्वर दिखता है, उसमें भी ईश्वर दिखता है, वही 360 डिग्री एंगल पे काम कर सकता। अभी जो हम नफरत फैला रहे हैं ना हिंदू मुसलमान के खिलाफ, खूब फैला रहे हैं। हर दूसरा आप देख लो, एक साधारण पाकिस्तानी से मिलकर तो आओ। आप एक नॉर्मल लाइफ में देखो, जो पॉलिटिशियंस हम पे रूल कर रहे हैं ना, उनको रूल मत करें। हम आज इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि हमारे संस्कार आज भी जिंदा हैं। चाहे आप हमें कोक के नाम का जहर पिलाओ, चाहे आप हमारे आटे में केमिकल्स डालो, कुछ भी करो, आज भी हिंदुस्तान सबसे ऊपर शिखर पर है। क्यों है समझो ना, हमारे मंत्र जाप जो हमारे खून के अंदर। हमारे बच्चे जितने ही मॉडर्न हो जाए, जब एग्जाम्स आते हैं ना, उनको बोलो बेटा पास होना है ना, गायत्री मंत्र का जाप करो, करने बैठ जाते। इट इज इन आवर जीन्स। हेलो, हाँ जी बेटा, सेकेंड फ्लोर, 203। और एक हीलर को भी ऐसे ही होना है। आपके मन में, आपके पास एक पेशेंट आएगा। आई रिमेम्बर मेरे पास एक किडनी फेलियर का पेशेंट आता था, सेकेंड फेज ऑफ कोरोना, नहीं सेकेंड फेज ऑफ कोरोना में तो मैंने वो केस लिया था। सोरियासिस खतरनाक स्किन डिजीज होती है, पूरी बॉडी में जख्म भर जाते हैं, और उसके जख्म के ऊपर मैं हाथ ऐसे रख के उसकी पल्स चेक करती थी। 3 सालों में 90% रिकवरी हुई थी। मेडिकल साइंस में इसका इलाज नहीं है। और जो है कोरोना से पहले किडनी फेलियर की लेडी आती थी, उसका स्किन का कलर ऐसे हो गया था जैसे मैं कीचड़ में हाथ डाल रही। जो मेरी हेल्प होती थी ना, आफ्टर शी यूज्ड टू लीव, वो क्लीन करती थी प्रॉपर, उसको इतना वहम होता था।
अगर ये वाला भाव मैं अपने अंदर लेकर आऊंगी तो आपको लगता है मैं उसकी हीलिंग कर सकती थी? तो देखो, दो बातें हैं, एक तो निंदा कर लो या सक्सेसफुल हो जाओ। आप सक्सेसफुल होगे तो भी आपकी निंदा होगी, दैट्स अ गुड पार्ट, लेट देम टॉक। लेकिन सक्सेस के पीछे भागो, बेस्ट है। देखो, उस दिन मैंने न्यूज सुनी, कल परसों की न्यूज है, कौन सी कंपनी है जिसने रातों रात इतने, हाँ, कितने लोगों को बाहर कर दिया। आज के जमाने में जो स्किल इंडिया है ना, उसके ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर एक वो लेकर आओ स्किल, जिसके हिसाब से आप लोग अपनी रोजी रोटी कमा सकते हो। और बहुत इजी है, आई मीन संत बनने के लिए कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। आप जो एनर्जी दे रहे हो वो एनर्जी आ रही है। आप सुख दोगे, सुख आएगा। आपने दुख दिया, दुख ही आएगा। तो प्योर मक्खन से मुझे क्यों एलर्जी है? क्योंकि गाय माता को इंजेक्शंस हॉर्मोन्स के दिए जाते हैं। हमारे देश में गाय को माता कहा जाता है। उनको हॉर्मोन्स के इंजेक्शंस दे रहे हैं जस्ट टू इंक्रीज द सप्लाई, देन क्रिएट अ डिमांड इन द मार्केट कि देखो इसी खाने से भला होगा। अगर उसको खरीदने से किसी को दुख मिला है तो मुझे उससे सुख नहीं मिलेगा। हमारी बॉडी केमिकल से बनी हुई है। जो आपके हॉर्मोन्स है ना, स्टेरॉइड हॉर्मोन्स हैं, दूसरे हॉर्मोन्स हैं, ये हॉर्मोन्स जो है सब केमिकल्स है। आपकी एंजाइम्स केमिकल्स। तो आपका जो भाव, ठीक है, एक ना चाणक्य की स्टोरी आती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को, जो सबसे जहरीला सर्प था ना, उसका जहर रोज पिलाया था। पहले ना हफ्ते में एक बार पिलाया, बहुत कड़वा था। अब वो चंद्रगुप्त उस समय ना जो है बहुत छोटी उम्र का था। उसने गुरुजी से पूछा कि भी क्या पिलाया आपने? कहते हैं ये तुम्हारी ना इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। और वो जहर था। तो ना उस समय ये भाव होता था कि जो गुरु है ना, वो ईश्वर के समान है। वो जो देगा सर आपको, और उसकी सेवा में लगे रहते थे। तो भी अच्छा, ठीक है। स्लोली ग्रेजुअली ही इंक्रीज द डोज, ट्वाइस अ वीक, फिर ट्वाइस अ वीक। और उसे पिया नहीं जाता था, इतना गंदा स्वाद होता था उसका। क्योंकि आपकी बॉडी में एक मैकेनिज्म है जो आपकी बॉडी के लिए गुड नहीं है ना, वो उसको रिसीव नहीं करती। वहां पे आपको पेन्स होते हैं। इसलिए जो मॉडर्न साइंस में मेडिसिन खाने से या उसकी स्मेल से आपको ना प्रॉब्लम होती है। तो उसको पिलाया गया। देन वंस ही वाज आउट फॉर अ वार, और वहां पे कुछ ऐसा उनके दुश्मनों ने प्लॉट किया कि इसको जो है इतना सिवियर जहर दिया जाए कि लेते ही बंदा खत्म हो जाए। और वो उसको उस पे कोई असर ही नहीं हुआ। तो अब आप समझ गए, मेरी बात का मतलब समझ गए हैं ना, कि ओवर ईट नहीं करना, लेकिन जो आपके पास खाने के लिए है ना, उसे एंजॉय करो। क्योंकि नहीं तो हमें सिवियर डिप्रेशन होगा, और अगेन हमारे बच्चे सुसाइड करें। हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ठीक है। तो निंदाओं मत करो, हर चीज में कोई ना कोई कमी होगी। जहां कमी नहीं होगी वहां तो ईश्वर है, साक्षात पूर्ण रूपेण, है ना? नहीं तो ईश्वर तो हम में भी है। तो बस इतना ही कहना चाह रही हूँ। ठीक है, जय श्री। चलो, आज ना, अब ये प्रैक्टिकल जो है हमने सोचा था तो नेक्स्ट वीकेंड पे करते हैं। तो आज हम लॉन्ग हॉरिजॉन्टल पेंटिंग करें। तो दिस इज योर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल। ओके, अब देखिए,
पहले हमने जो है लाइक दिस, पहले हमने जो है बॉडी को ऐसे काटा, फ्रंट एंड बैक, ओके। तो क्या बना, 0 एंड 9, ये हमने काटा वर्टिकली। फिर इधर आए, ये राइट साइड में है तो 1 8 हो गया, 4 5 हो गया, लेफ्ट में 2 3 हो गया, 4 5। क्लियर। अब अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली काटूं, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो 0 9 की पोजीशन चेंज हो गई। समझ गए आप? अभी 0 9 कहाँ था, आगे और पीछे। अब 0 9 कहाँ आ जाएगा, जहां 5 और 6 था, तो 5 और 6 की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आगे 1 2 ही रहेगा, 3 4 रहेगा। हॉरिजॉन्टल मींस 2 eyes are horizontally placed, 2 nostrils are horizontally placed। ठीक है, लिप्स की पोजीशन ऊपर नीचे है बट दे आर हॉरिजॉन्टल, है ना। तो अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो एक आई इधर, एक आई इधर, एक ईयर इधर, एक ईयर इधर। ठीक है, तो इसमें जो आपके 5 LHM बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, 1 and 2, 3 and 4, 0 9, 0 9 इधर आ गया। आगे 0 वाली जो स्पेस वर्टिकल मेरिडियन थी वो ब्लैंक हो गई। ओके, और ये जो 5 6 इधर था, उसको हमने पीछे प्लेस कर दिया जहां पे स्पाइनल कॉर्ड है, और 7 और 8 को बाहर कर दो तो शफल हो गया। 5 8 शफल हो गया, और उस तरफ से जो है 7 और 6 शफल हो गया। ठीक है, लेट मी शो यू इन द बॉडी। ये बुक ना मेरे पास भी नहीं है, but I have ordered one for myself also, along with the Preeti's order. मैम जस्ट फॉर कंपैरिजन सेक, एक नॉर्मल नॉर्मल हॉरिजॉन्टल मेरिडियन करके उसके साथ में अगर एलबीएम सॉरी लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन करेंगे तो एक थोड़ा सा इट विल बी बेटर। This is what we are doing. This is long horizontal meridian. ये देखिए, यहाँ पे 1 2 0 9 का 1, they have started from the 1 2, 1 2 देखिए आप, 1 2 को हमने ज्वाइन कर दिया, मीन्स लेफ्ट और राइट बॉडी को हम ज्वाइन कर। पहले हम क्या कर रहे थे, आगे वाली बॉडी और पीछे वाली बॉडी को ज्वाइन कर रहे थे, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट बॉडी और राइट बॉडी को ज्वाइन कर। क्लियर। तो ये हो गया आपका 1 2 LHM। 1 2 LHM में आप क्या क्या ले सकते हैं, इसको आप स्टडी कर लेना। आउटर रीजन ऑफ द ईयर, आईज, सॉरी, टेम्पोरल रीजन ऑफ द हेड, देखो ये वाला रीजन है। ठीक है, देन दिस पार्ट ऑफ योर ईयर, एक्ने ऑन द फेस, क्योंकि आपका फेस इसमें आ रहा है जनरली यहाँ पर, तो योर चीक्स, जॉ, यू नो दिस पोर्शन ऑफ योर थ्रोट। ओके, तो यहाँ पे आपके टॉन्सिल्स भी आ जाते हैं। देन दिस इज योर क्लैविकल बोन, है ना। आपके नीचे चेस्ट आ जाती है, लंग्स इसमें आ जाते हैं, आपकी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी नीचे देखो, यहाँ पे इट इज गोइंग थ्रू द लीवर ऑल्सो एंड द स्टमक ऑल्सो। ओके, एंड जो है ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे फीवर, कफ, देन वेरिकोज वेन्स, ब्लॉक्ड ब्लड सर्कुलेशन, ये सब हम इसमें ले सकते हैं। तो इसी तरह से 3 4 हो गया। 3 4 को मैं अभी ड्रॉ करके बताऊंगी फिंगर पे। ये देखिए यहाँ पे फिंगर पे 1 2 लिया गया है,
तो 1 से शुरू करके 2 पर आएंगे। अगर हम 2 से जाके 1 पर आते हैं तो वो अपोजिट फ्लो हो जाता है। ओके, देन 3 4 we will move from 3 to 4, not 4 to 3. If we are moving from 4 to 3, it will become opposite flow. Similarly, now see, here is your 0 and 9. 0 और 9 देखो यहाँ पर आ गया आपका। पीछे 7 8 देखिए बाहर आ गया है। पहले क्या होता था, जब हम पीछे देखते थे, यहाँ पे थंब है, तो यहाँ पे आपका 5 8 9 7 6 ऐसे आ रहा था। ठीक है, अब हम इसको शफल कर देंगे। ओके, ये देखो, ये 5 और 8 को शफल कर देंगे तो 5 अंदर आ गया, 8 बाहर आ गया। 6 और 7 को शफल कर देंगे तो 7 बाहर आ जाएगा, 6 अंदर आ जाएगा। 5 6 LHM, 7 8 LHM। ठीक है, क्योंकि धातु में हमने पढ़ा था 5 क्या है, पृथ्वी, और जो है मीन्स बोन्स, बोन्स है ना, और जो है 6 क्या है, बोन मैरो। याद है कि नहीं है? तो बोन और बोन मैरो आपको कहाँ मिलेगा? आपका स्केलेटल सिस्टम में जो वर्टेब्रल कॉलम है। ठीक है, तो वर्टेब्रल कॉलम के साइड में 5 6 आना चाहिए, ये भी एक रीजन है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो 5 6 बाहर की तरफ था उसको अंदर की ओर शिफ्ट कर दिया, और जो है 0 9 इस तरफ आ गया। अब देखो, इन्होंने ना कुछ गड़बड़ी की हुई है 0 9 में। अच्छा, ये 7 8 LH 0 9। ओके, नाउ मैम मैम एक बार ना ये जो ये वाला जो है ना नॉर्मल वाला, पहले कहाँ गया ये जैसे नॉर्मल वाला है ना, ये वाला जो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, इसके बाद उस पे आते हैं तो थोड़ा सा और थोड़ा सा वो क्लैरिटी और आ व्हाट इज जाएगी। दिस पेज नंबर? मैम पेज नंबर 2 and 3, नॉर्मल हैंडबुक 2, जस्ट शोइंग टू मी। हैंडबुक 2, यस मैम। ये है ना, इसमें थोड़ा सा धीरे धीरे करके, मतलब आई राइट Yeah, नाउ। let's do right, what's Jayashree saying, ma'am. Let's do a sort of a comparative, because it's difficult to move to हाँ, प्लेस I इट मत to अभी place मैं it. मैम एक कंपैरिजन कर लेते हैं, जो हमने वर्टिकल मेरिडियन किया था और एक हॉरिजॉन्टल का सिंपल, क्लिक and एंड then we सेंड। move on to the long horizontal meridian. I'll just click ma'am and send it across. Well, I नहीं, don't मैंने have देख that book, लिया, unfortunately. I'll have to depend मैंने on देख लिया। what ma'am भाई, draws. आप लोग घर से होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या मैं हाथ पकड़ के चलाना सिखाऊं? नहीं कर रहे हैं, हाथ but में, अगर आप लोग प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है। एक मैम कंपैरेटिव कर लेते हैं, so that we get an understanding. देखो, पहले कह रहे हो वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर आगे वो LVM, फिर LHM। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। Yeah, let's do the पूरा simple first, then move पूरा on to the रिवीजन, long. Yeah, पूरा then रिवीजन। move. ठीक है, ओके। Yes. आपकी कॉपी कहाँ है? खोलिए बैग। ओके, आगे से जो क्लास में 9:05 के बाद आएगा वो क्लास में अलाउड नहीं। इज दैट क्लियर? आज क्लास में आप सब लोग, आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी
आई यूज टू टेल माई हस्बैंड मेरे से पहले मेरे स्टूडेंट्स बैठे थे, अब उनका होना शुरू हो गया। रिस्पेक्ट द टाइम। अगर आप टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आपको तरक्की नहीं मिलेगी, ये याद रख लें। चलिए, हॉरिजॉन्टली हमने बॉडी को काटा, फिंगर पे देखें कि थंब पे देखें। लेट्स सी इन द फिंगर। हाँ, पहले फिंगर बिकॉज थंब थोड़ा अलग, पहले फिंगर। हम्म। जीरो, वन, टू, फाइव, एट, नाइन, सेवन, सिक्स, थ्री एंड टू। ओके, तो जीरो वर्टिकल मेरिडियन को हमने इस तरह से दिया। लाइन सीधी नहीं है। एक्चुअली ब्लैक बोर्ड पे ना बहुत अच्छा बनता था सब कुछ। अब मुझे थोड़ा ऑन स्क्रीन पे ड्राइंग की आदत डालनी है, but I will always be missing my whiteboard, blackboard. बोर्ड पे ही करें, जल्दी भी हो जाएगा। ये कैमरा कर लोगे? यार बोर्ड चलो, ज्यादा अच्छे से होगा। भी करना भी काफी सारा है। पर ऑनलाइन में प्रॉब्लम हो तो बता देंगे, मैं वापस और इसमें आ जाऊंगी। या श्योर, ओके। ठीक है, पहले ब्लैक बोर्ड को साफ करते हैं। बोर्ड भी बना ऑनलाइन। Okay, so we'll do first the vertical measurement. V. Okay. Finger. Now यहाँ से 0, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 7, 6. Clear? Okay. Now 0 vertical measurement will be this.
इसमें आपका ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब अगर मुझे इसमें लॉग वर्टिकल वेरिएबल देखना है, वर्टिकल वेरिएबल क्लियर है? Ma'am, you can close your book so that we can see the screen becomes bigger. Yeah, this is better. These are the 0 vertical variable. Okay. Hmm, Now hmm. suppose we do long vertical variable. Long vertical variable के लिए हम select करेंगे मान Okay. So this will be 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and long vertical variable clear है, नीति जैसी Yes, ma'am. ओके। अब इसमें लॉग हॉरिजॉन्टल वेरिएबल देखेंगे, तो मैं अलग से जो है फिंगर बना रही हूँ हॉरिजॉन्टल वेरिएबल। Now, horizontally, if I be cutting the fingers, horizontally I am cutting the fingers like this. Okay, so this is 0 horizontal variable, 1 horizontal variable, 2 horizontal variable, 3 horizontal variable, 4 horizontal variable, 5 horizontal variable, 6, 7, 8, and 9. So if suppose I will take 4 horizontal variable. Okay. 4 horizontal variable is this. Okay. On those 4 horizontal variable, this is 0. Towards the come 1, 4, 5, 8, 9, 7, 6, 3, and 2. This is your horizontal variable. Clear? Okay. Now, long horizontal variable. In the long horizontal variable, the position of 0 and 9 gets changed. Position of 0 and 9, 5 and 6 change. इसका लॉजिक आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखो, जब मैंने बॉडी को वर्टिकली काटा तो ऐसे काटा, ठीक है? अगर मैं अपनी बॉडी को हॉरिजॉन्टली काटा तो ऐसे काटूंगी, आगे की बॉडी आगे बढ़ जाएगी, पीछे की बॉडी पीछे हो जाएगी। जब मैंने ऐसे काटा था तो आगे 0 नीचे आएगा, अगर मैं इसको ऐसे काटूंगी तो राइट साइड में जो है 0 होगा, ये 9 होगा। पहले क्या था, ये 5 था, ये 6 था, अब 5 में 0 हो जाएगा, जो 6 था वो 9 है। तो 5 और 6 कहाँ जाएंगे? 5 और 6 जाएंगे जस्ट पीछे besides minus 5 and 4. Okay, because 5 below is both and 6 is both negative. कहाँ मिलेगा? जहाँ पे हमारे शरीर का ढांचा होता है ना? वो क्या है? हमारा वर्टिकली कॉलम। ठीक है, आपकी बॉडी की जितने भी लॉन्ग बोन्स है, आपका वर्टिकल कॉलम है, आपका आगे का स्टर्नम है, यहाँ पे सबसे लॉन्ग बोन होती है,
आपकी हाई बोर्ड है टेबल स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट बोर्ड, ठीक है, आपकी ये वाली बोर्ड है, इनकी अंदर एक स्पॉन्जी फ्लूइड होता है जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनाता होता है, आपके बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता रहता है। और कल हमने समझा था कि अगर ब्लड में आरबीसी की डेफिशिएंसी होगी तो जो है लंग्स में भी प्रॉब्लम आएगा, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये हमारा 5-6 एलर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे ट्रीटमेंट को मिस नहीं करने वाले, ठीक है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टली इसमें काटेंगे तो जो जीरो है कम की तरफ जाएगा, 0 9, ठीक है। जैसे कि ये फिंगर है, towards the thumb will be 0 and opposite to will be 9। अब ये पोजीशन जो हमने वर्टिकल मेरिडियन में नहीं की थी, यहाँ पर हम ले रहे, ठीक है। तो 0 मेरिडियन हॉरिजॉन्टली एंड 9 मेरिडियन वर्टिकली, क्लियर है। तो आप देखिए अब यहाँ पे 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 4 1 और 4 2 और 3 एज इट इज है, ठीक है। तो अब हम पहले हम बना रहे हैं 1 2 L H L। मैं बात कर रही हूँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब ठीक क्या है, ओके। तो 1 2 L में प्लॉट जो होगी प्लॉटिंग ऑफ द elements will remain same, ये 0 ये 1 ये 2 this will be 3 4, यहाँ पे आ गए 5 6 7 8 and 9। दूसरा एलिमेंट बनेगा 3 और 4 का, देखो 1 2 is also your bar, 1 plus 2 bar 3 4 फिट होता है, ठीक है। तो फिट क्या है, इंफ्लेमेशन है, फिट क्या है, ब्लीडिंग है, फिट क्या है, फीवर भी है। तो अगर सिंगल नंबर 1 to 5 में 3 4 का एलिमेंट लगाएंगे, उसमें 3 4 ब्रेक कर 5 6 को तोड़ कर देंगे तो फीवर बहुत अच्छे से ब्रेक होगा, ओके। तो 3 4 पहले से कहां से शुरू होगा, यहां से 0 1 2 3 4, देन यहाँ पे 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब मुझे 0 9 का भी देखना, 0 9 तो मैंने 0 यहाँ से शुरू किया, 0 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा 5 6 7 8 and 9, क्लियर है। फिर अब जो है कौन सा बनेगा, 5 6 का बनेगा, 5 6 11 तो यहाँ पे क्या है, 5 यहाँ पर आ गया, 6 यहाँ पर आ गया, 8 यहाँ पर आ गया, 7 यहाँ पर आ गया। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, शामिल हुआ ये जो ब्लॉकिंग कैसे आ रहा है, आपने एल्डिहाइड भी तो सीखा, वैसे ही ब्लॉकिंग इसमें आगे से पीछे जा रहा है, यहाँ पे लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जा रहा है, बस वो वाली फाइल में तो सर्विस की है हमारे पास, जो 4 बने बिजली उसकी शक्ति नहीं है, 1 2 3 4 भी नहीं है, बाकी सब शफल हो गए, 0 9 भी शफल हो गए,
5 6 shuffle हो गए, 7 shuffle हो गए, है ना? जो shuffle हो गए वो फर्क बहुत ही है। मीन्स की वाले पोर्शन में हमने खाली हम और 9 को शफल किया है, मतलब 9 को पीछे रहता है, हम 0 को शफल कर दिया आपने, 9 को शफल किया है, तरह से प्राइवेट है। Position of 0 9 5 6 and 7 8 3 1 shuffle करो। ठीक है, जो shuffle नहीं हुआ है वो है 1 2 3। हम बीच में 0 और 9 के हमारे कुछ सेट पॉइंट्स आ रहे हैं, इनमें कुछ नहीं बीच में ब्लैंक है। जैसे पहले काफी प्लान करता था पहले पहले यहाँ पे ब्लैंक है, अब ये यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, और अब हम 5 6 सेलेक्शन कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे 0 1 2 3 4 then 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्लियर है? then 7 to 8 0 1 2 then 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो बीच का ए है और ब्लैंक है, यहाँ पे भी बीच का ए है और ब्लैंक है। ठीक है, पीछे भी ऑर्गन का स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, एक तो होता है विपैथोमेगाली, लीवर में सिंपल नाम है, फिर वो फैटी लीवर आता है, फैटी लीवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 के बाद होते सिरोसिस हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर का कैंसर है। ओके, तो अगर बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाए तो हमें और एलर्जी लेना चाहिए, फिर और भी ज्यादा जब और भी फेलियर हो जाए तो फिर आप एलर्जी करेंगे। ओके, तो इस तरह से जो है आपने जो है नॉर्मल क्लियर है आरक्षण आरएलएच में भी इसकी बात हो। ठीक है, आपकी रिपोर्ट क्लास में वो बहुत सारे रिपोर्ट क्लास में मैं हमेशा कोशिश को लेकर जाऊंगी किताब, मेरे जमाने में इतनी मोटी किताब है, और उसी को मेरी सेक्शन से वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 और अभी उसकी बाइंडिंग भी आप देखो सॉलिड बाइंडिंग, अभी तक रिपोर्ट मेरी में नहीं है। अभी तो बाइंडिंग और मेन वॉल्यूम में देखो अच्छी नहीं है, तो जो है उसमें यू विल सी ऑल दी प्रोटोकॉल्स। अब इसमें बेस्ट प्रोटोकॉल में आपको दिखा, हमारे बॉडी में हो जाता है इन्फ्लेमेशन, जिसे हम कहते हैं ईएसआर। ईएसआर पहले तो ऑनलाइन से फीडबैक ले लो, सबके सब वीडियो ऑन कर लो, यहाँ तक क्लियर है? नहीं तो if you want me to repeat something, I will repeat. All clear? Ma'am, it will take time for processing, so you go ahead, ma'am. So I am having lot of time. आज तो मैं इससे ज्यादा कराऊंगी नहीं, बताओ कौन सा रिपीट करूँ? it will help अगर आप अपना you instead of your whiteboard you do it on your computer, because it's not very and sort of repeat 0 9 or 5 6 yeah Election. yes Zero, because nine, हमें ना it's because I can't see very clearly हाँ,
I sorry, will the put reflection. on the tip finger so that it is clearly visible to you all. Yeah, I- because it isn't very clearly visible, so I can't. आप अगर you keep this, but कैसे देखे? Because ना वो right का reflection भी आ रहा है मुझे, and I can't see the board very clearly. हाँ, so कैसे? हाँ मैम, एक बार आप अपना, या if you can do it on your computer, अभी that will be. एक लाइट की रिफ्लेक्शन ऑन Yeah. न्यू Ma'am, पीछे can you do it on your computers? That's better. We see a nice bright screen. जैसे भी आएगा, I'll understand. I understand what you're saying. 09 and this one. I will be doing it on my screen. 0956. Yes. Sure. देखिए पहले ना हॉरिजॉन्टल मेरिडियन देखते हैं. हॉरिजॉन्टल मेरिडियन देखेंगे. किसका हॉरिजॉन्टल मेरिडियन बनाऊं? हाँ जी. प्रीति आप बताइए किसका हॉरिजॉन्टल मेरिडियन बनाएं पहले. प्रीति. Ma'am, we can make or okay, we can make yeah, we can make 0 हॉरिजॉन्टल 9. मेरिडियन 0 and 9 horizontal meridian. Yes. Okay. 0 Yes, horizontal yes. meridian first. Okay. So let's work on 0 horizontal meridian. On 0 horizontal meridian, this is your 0 horizontal meridian. So this is 0, 1, 4, 5, 8, 9, 7, 6, 3, and 2. This is your 0 horizontal meridian. Clear? Now, 9 horizontal meridian will come over this. इस तरह से. Even if it comes upon your nails, it's okay. So, this is 0, 1, 4, 5, 8, 9, 7, 6, 3, and 2. This is your 9 horizontal meridian. It's like कि जितना भी ऊपर आपका ये बनता है इस तरह से नेल के ऊपर आएगा ना. देखो मैं अपने पेन से यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ 0 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन. ये नेल के ऊपर भी आएगा. माय पेन इज नॉट वर्किंग. This is your 9 horizontal meridian. So 0 नहीं ना, 9. 9 vertical meridian. 9 vertical. Ma'am, 9 horizontal. 9 horizontal meridian. Yes. Yes. Okay. Okay. Got it. ठीक. जो आपका ये बनता है इस तरह से और पीछे नेल का उतना ही एरिया आएगा बिकॉज माय पेन इज नॉट वर्किंग ऑन इट.
Marking will work. Like this. This is your 9 horizontal variable. Clear है? Now, और कोई हॉरिजॉन्टल पेंटिंग बनाना है चित्र? No, ma'am, I'll try it once more once the class is over. Right now, I'm traveling. ओके जयश्री Thank you, ma'am. Ma'am, जयश्री I'm following whatever you are saying. ओके तो अब हम LHM पे जा सकते हैं, जी मैम. हाँ, yeah, yes. ठीक है? तो देयर आर 5 LHM, 5 long horizontal variable. What are 5? 1 and 2, 3 and 4 on the ventral side of your body. On the zonal area of the body comes 0, 9. This is zonal area, this is ventral area, and this is dorsal area. Okay? इसको हम कहते हैं zonal area. These are the zones. Okay? Front side, front of the body. Front of the body is ventral. Back side of the body is known as dorsal. Then sides of the body, outer sides, okay? That is a zonal area. ठीक है? So this is on the ventral side of the body. This is on a zonal side of the body. Then we have 5, 6 LHM, 7, 8 LHM on the dorsal side of the body. ठीक है? तो सबसे पहले 1, 2 का LHM बनाएंगे. साथ के साथ पहले मैं बनाऊंगी फिर आप भी बनाइए. ओके? तो पहले हम बना रहे हैं 1, 2 long horizontal meridian. This is 1, this is 2. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. 1, 2 long horizontal meridian. सबको आ रहा है? मैम ये नीचे 1 2 क्यों लिखा हुआ है?
0 ये 1 4 ये 2। नीचे वाला 1 2। अब आया समझ में? अच्छा, वो हॉरिजॉन वो वर्टिकल वाले नंबर्स हैं। ओके। अच्छा, अब ठीक है। थोड़ा बहुत। मैम ये कुछ RLVM जैसा नहीं है? मे बी आई एम कंफ्यूज्ड। देखो इसमें ना आगे की बॉडी, इसको हमने ना ऐसे काटा, ठीक है। आगे की बॉडी आगे रह गई, पीछे की बॉडी पीछे रह गई ना, ठीक है। RLVM में तो ये और ये भी कनेक्शन हो सकता है, ये और ये भी कंबाइन हो सकता है। ओके मैम। क्लियर है? अब 3 एंड 4 का बनाए, मैं अलग से ही फिंगर ले रही हूँ। In that case, just ma'am, let me understand. So, इस केस में 4 और 5 जो है, या 6 और 3, इसका LHM वगैरह नहीं बनेगा क्या? 3 और नहीं, 6, आई मीन, हाँ, ओके 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 जैसे ओके, LBM अंडरस्टूड। 5 थे, LHM भी 5 ही हैं। LBM 5 थे, आई मीन वी कैन कट अक्रॉस, नो रीजनल, वो जो ऐसे वी कैन कट अक्रॉस, राइट? आई मीन वी फिर कैन हमने हैव ऐसे काटा, फिर आगे से ऐसे काटा, ऐसे काटा, फिर इधर काटा, फिर इधर काटा। एक बार ना 2 छोटे छोटे केक लेकर आना क्लास में। अगले हफ्ते प्रीति आ रही है, ठीक है। प्रीति को केक खिलाएंगे, लेकिन पहले प्रीति उसको हॉरिजॉन्टली काटेगी, फिर दूसरा केक वर्टिकली काटेगी, फिर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नहीं, इट्स नॉट अ जोक, विल हैव अ पार्टी ऑल्सो, एक छोटा सा गेट टुगेदर भी हो जाएगा। और आप लोगों को ना चीज समझ में आएगी कि क्यों 1 2 जो है, 3 4 जो है वो आगे की ओर आ गए, है ना? one more thing. I mean, let's go back to the vertical meridians. I Hmm. can have, I can have, I can have 4 and 5 long vertical meridian, right? I can have 4 and 5. I Yes. can have 3 and 6, right? मेरी को problem Yes. ऐसे हो सकती है, I can have 3 and 6. But horizontal में, there is no such, I can't have 3 and 6. क्या I can have 3 and 6 horizontal maybe? नहीं. 3 and 6 you can have regional long horizontal meridian. Regional long horizontal. Yeah, जो मैंने 3 and 6 vertical में भी बोला था, that is going to be a regional long vertical meridian. 3 and 6. Regional, Or okay, listen to me. नॉट क्लियर। मैंने ना, ये एक सर्कल है, ठीक है। इसका ये वाला फ्रंट है, मैं वेंट्रल ही लिखूंगी, सीखो। दिस इज योर वेंट्रल, दिस इज योर टॉन्सिल एरिया, ठीक है। अब एक सर्जन क्या करता है, कटिंग करता है ना बॉडी की, एक्सरसाइज किया जाता है। तो मैंने इसको आगे और पीछे से काटा। पहले मैं इसकी नंबरिंग कर देती हूँ, 0, ठीक है, 1 4 5 8 9 7 6 3 and 2, ठीक है। अब मैंने इसको कैसे काटा है, वर्टिकली काटा, ऐसे बॉडी, हाँ, right. ठीक है। तो अब आगे और पीछे वाले मिल गए, हम्म
1 और 8 LV लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, 4 and 5 vertical meridian, 2 and 7 long vertical meridian, 3 and 6 long vertical meridian. हम्म ठीक है, अब मुझे इसको हॉरिजॉन्टली yes correct काटना है. this is fine ओके, हॉरिजॉन्टली काटना है तो फर्स्ट कटिंग मेरी यहाँ पर आएगी. भाई यहाँ से भी मैंने लेफ्ट और राइट को अलग किया ना, सेंटर से काटा. अब मैं ऐसे काट रही तो आगे की बॉडी आधी आगे आधी पीछे. ठीक है, तो 09 यहाँ पर आ गया. yeah correct this is fine ठीक है, मैम तो तो हम जीरो क्यों वहां से साइड से नहीं शुरू कर रहे हैं? अच्छा, oh अच्छा हाँ, ठीक है, अब जब मैं आगे की बॉडी आगे रख रही हूँ, हम्म पीछे की बॉडी पीछे रख रही हूँ, तो ये देखो 09 तो चला गया साइड में. ठीक है, अब ये 1 2 मिल गए, 3 4 मिल गया. ओके, अब ये 5 6 कहाँ आ गया? ये वर्टिब्रल कॉलम के इधर 5 और 6 आ गया. इसको ऐसे मैम मिला. ये नेटवर्क इश्यूज कांट हेयर यू. कहाँ पे एक सेकंड कहाँ Shall I repeat? 09 इधर. हाँ प्लीज वी लॉस्ट यू देयर यस. आपको वर्टिकल तो समझ में आ गया, लॉन्ग वर्टिकल समझ में आ गया. ठीक है, अब हम हॉरिजॉन्टली काटते हैं. सेम, हम इसको जब हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो यहां से काटेंगे. ठीक है, ये 0 ये 9 हो गया. ओके, तो अगर मैं आगे की बॉडी इधर आगे काटूंगी, पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं. 0 1 4, ये 5 था, 8 9 7 6 3 2 ऐसे था. ठीक है, अब मैंने जब इसको आगे और पीछे में काट दिया सेंटर से, तो 09 इधर आ जाएगा. जब मैंने ऐसे काटा तो आगे 0 पीछे 9 गया. अब जब मैं ऐसे काट रही हूं तो साइड में 09 आ जाएगा. ठीक है, तो अब मैं आगे की फिगर्स आगे से मिलाऊंगी, तो ये लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन हो गया, ये लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन हो गया. ठीक है, 7 8 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन हो गया, और ये 5 और 6 इधर आ गया. 5 और 6 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन. अभी आया समझ में? आप लोगों को आया समझ में? या आई गॉट इट. मैं अपने लिए एक ड्रॉ करती हूँ इन केस इफ आई हैव कंफ्यूजन आई कम बैक. जस्ट वेट. पहले हम ना वर्टिकली हाँ इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक हाँ है, वर्टिकली में ना Suppose एक चीज और मैम यही right there is a vertical long vertical meridian. आपकी थी नेटवर्क इशू था आपका, कुछ Oh. भी हमें नहीं सुना. अभी आवाज आ Okay. रही है. हाँ so what I'm saying is मैं आपने जब vertical meridians की बात की थी you said vertical meridians first, long vertical meridians, and then we have regional long vertical meridians. So let's first see regional long vertical meridians. Have we discussed? अभी हमने नहीं किया ना, हमने long vertical क्या? meridian किया है. किया है जब हमने 4 और 5 did are you saying जब हमने 4 और 5 को किया है, is it a long regional long vertical meridian? नहीं, फिर हमने कैसे किया 4 कैसे regional long को? वर्टिकल मेरिडियन 0 to 9 आपको पता है. Yes पता है. Yes I got that. फिर हमने कहा कि 5 लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियंस हैं. कौन कौन सी है? 0 9
1 8 4 5 3 6 2 and 7, ठीक है। हाँ ये भी ठीक है, दिस इज फाइन। ये 5 LBM हमारे फिक्स है। हाँ यस मैम, दिस इज फाइन। लेकिन अगर किसी पेशेंट को इस रीजन में और इस रीजन में पेन है तो मैं 4 और 8 का भी तो बना सकती हूँ ना। हाँ तो वो रीजनल लॉक हो गया, ठीक है, दैट इज तो व्हाट आई वाज, ठीक है ठीक है। याद आ गया अब हम्म हम्म के। अब हम जो है अब दोबारा से काटना शुरू करें वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। यस हाँ अब करते हैं, यस नाउ वी कैन डू हॉरिजॉन्टली, यस। जब मैं इसको हॉरिजॉन्टली काटूंगी तो इस तरह से काटूंगी, ठीक है। मैम ये आप वर्टिकली काट रहे हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं। सॉरी, मैं वर्टिकली काट रही हूँ, मैंने हॉरिजॉन्टल बोला, सॉरी। देखो, ठीक है। ये पहले तो इनको सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, 0 1 4 5 8 9, sorry, this is 9 7 6 3 and 2, ठीक है। अब इसको मैंने वर्टिकली काटा तो आप देखो 0 और 9 यूनाइट हो गए, 0 9 का LBM बन गया। तो पहले हमने देखा कि 0 और 9 का LBM बन गया, ठीक ठीक है। है। अब ये देखो 1 और 8 को मिलाओ, 1 8 का LBM बन गया। हाँ ठीक है, यस। 4 एंड 5 को मिला दो, 4 5 LBM बन गया। राइट। 2 और 7 को मिलाओ, इसका LBM बना, और ये 3 6 का LBM बन गया। क्लियर है? या इट इज क्लियर, यस। अब मैं इसको हॉरिजॉन्टली काटूंगी। हॉरिजॉन्टली मैंने काटा तो ये आपका 0 और 9 हो गया, ठीक है। 0 9 साइड में आ गया, जोनल एरिया में आ गया। अब जो है इसमें मैं कॉम्बिनेशंस बनाऊंगी, तो इस तरह से बनाऊंगी 1 2 1 2 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वेरिएबल। अब मैंने हॉरिजॉन्टली यहाँ पे काटा तो 3 4 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वेरिएबल। फिर मैंने क्या किया, अब 5 6 की पोजीशन को मैंने यहाँ कर दिया, 5 एंड 6 5 6 एंड 7 8। तो 0 9 एक तो बना, इसकी पोजीशन शफल हो गई, 5 7 8 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वेरिएबल, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। और 5 6 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वेरिएबल, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। एक सेकेंड, 7 8 क्यों चीज, 7 8 तो अपनी जगह पे ही है, 7 8 इज ओके वेरेवर इट इज, 5 6 चेंज हुआ है और 0 9 चेंज हुआ है, यस, राइट।
So it's only 09 and 56 which have changed. वर्टिकल मेरिडियन एक बार बना के दिखाती हूँ। मैंने देख vertical meridian. एक So लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। मैम वन मोर मिनट, जो आपका ओरिजिनल वर्टिकल 09 था, आपका जो ओरिजिनल वर्टिकल आपने काटा था 09, उस पे अब कुछ नहीं है, राइट? इट्स जस्ट वहां पे वो ब्लैंक है अब। देखो ना, हाँ वो ऐसे जो था, ठीक है, ये देखो, ये फिंगर है, आप देखिए किस किस की पोजीशन शफल हुई है। ये 5 और 6 हो गया, ये 7 और 8 हुआ। 7 8 की पोजीशन शफल हुई कि नहीं हुई? अनम्यूट योरसेल्फ। म्यूट हो गए हो प्रीति? यहाँ पे सबको क्लियर है? यस। आप हाँ जी, प्रीति। Yeah, I'm trying to understand. Is it did go to 7658? नहीं, I did. How did it change? 09 मुझे समझ में आ गया. It changed, and I understood 56 changed. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे चेंज हुआ, देखो ना, यहाँ पे 5 और 6 था, वर्टिकली काटा, ये याद है? Yes, 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 yes. है ना? तो जब मैंने हॉरिजॉन्टली काटना शुरू किया, 5 6 की जगह 09 आ जाएगा। Hmm. तो Yes. 5 पीछे चला गया ना वर्टिब्रल हाँ. कॉलम बाद में, Yes, तो फिर yes. इसमें 7 8 बाहर की तरफ आ गया। 7 8 बाहर की तरफ आ गया. Oh, okay, 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 okay. तो पीछे चला गया, ये बाहर की तरफ आ गया. Okay, okay. Right. देखो, जब भी एक मेडिटेशन हम सीखते हैं तो आपकी कॉपियां जो है उंगलियों से भर जानी चाहिए। खूब लिख लिख के प्रैक्टिस करो, खूब उंगलियां बनाओ।
सबके सब वीडियो ऑन करो। चित्रा इज ट्रैवलिंग, कोई बात नहीं, बाकी सब लोग अपने वीडियो ऑन करो। एक रूलर है किसी के बाद में, रूलर होते। जी है शायद, नहीं है। हाँ ऐसे ही इसको वो बना दो। ये है, ठीक है। ये समझो नाइफ है, इससे मैं अपनी बॉडी को काटने वाली हूँ। तो अभी मैंने ये ऐसे काटा, ठीक है, ऐसे काटा। तो आगे 0, पीछे 9 आ गया, ठीक है। अब मैं इसको वर्टिकली डिफरेंट सेक्शंस में काटूंगी। राइट साइड में गई तो 1 8 हो गया, 4 5 हो गया। ओके, लेफ्ट में गई तो ये 2 7 हो गया, ये 3 6 हो गया, ठीक है। अब जो है उसी बॉडी को मैंने हॉरिजॉन्टली काटा इस तरह से। तो आगे का हिस्सा आगे रह गया, पीछे का हिस्सा पीछे चला गया, ठीक है। तो अब मैं इसको जरा हॉरिजॉन्टली आगे से काटना शुरू करूंगी। 0 9 था तो ये थोड़ा और आगे काटूंगी, फिर ऐसे काटूंगी, इसी तरह से फिर इसको पीछे काटूंगी, ऐसे और ऐसे। तो इसमें जब मैं आगे की तरफ बढ़ती हूँ तो 1 2 3 4 का बनेगा। पीछे की तरफ जाऊंगी तो एक्सट्रीम बैक में आपका 5 6 आ जाएगा, और जो है 7 8 आ जाएगा। नीति कहाँ गई? जयश्री क्लियर है? थोड़ा मुझे इग्नोर करो अभी। प्रोसेसिंग टाइम लगता है मुझे। लविश, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम, द ओनली डाउट आई हैव इज जब आप वर्टिकली अपनी बॉडी को कट करेंगे लाइक दैट, ऐसे आपने कट करा, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस हेडफोन, मैंने ऐसे हेडफोन लगाया हुआ है, हम वर्टिकली बॉडी को कट करेंगे, सो 0 कहाँ लाए करेगा और 9 कहाँ लाए करेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे आप वर्टिकली? हॉरिजॉन्टल पूछ रहे हो कि वर्टिकल पूछ रहे हो? आपने जो ये हेडफोन बांधा है ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, सॉरी, हॉरिजॉन्टल, सॉरी, 0 राइट साइड में आएगा, 9 लेफ्ट साइड में आएगा। Okay. So right hand side 0 and left hand side 9. And Yes. उसके according we will follow. और फिंगर पे टुवर्ड्स द थंब विल बी 0, Hmm. distal to the thumb will be 9. Hmm. Okay, ma'am. Clear? देखो एक चीज को समझो, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। आयुर्वेद की कुछ बातें करेंगे। रोग का कारण, यू नो, कॉज ऑफ डिजीज।
हाँ, वो मैं भी आगे कराती हूँ। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन क्यों बन रहा है वो बता रही हूँ। इंटरनेट लॉस्ट, इंटरनेट इश्यू हो गया। ओके, आयुर्वेद ने कहा कि कॉज ऑफ डिजीज जो है दो प्रकार के हो सकते हैं। रोग कारक, रोग कारक जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो मानसिक होता है, मेंटल लेवल पर। एक शारीरिक शारीरिक होता है, ठीक है, मीन्स फिजिकल लेवल पर। ठीक है, मानसिक विकार उन्होंने कहा कि तीन प्रकार के हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। ठीक है, तीन प्रकार के मानसिक रोग होते हैं। और जो फिजिकल है वो भी तीन प्रकार के होते हैं, वात, पित्त और कफ। ठीक है, तो ये आपके जो है तामसिक, राजसिक एंड सात्विक। फिजिकल कौन से हैं? वात, पित्त एंड कफ। अब देखो जो मेंटल बॉडी है, अगर हम बॉडी देखो, बॉडी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो जब हम बॉडी को ब्रेन के साथ कनेक्ट करके चलते हैं तो उसके लिए हमने बनाई वर्टिकल मेरिडियन। अब ध्यान से देखो, वर्टिकल फिजिकल एलिमेंट्स हमने क्या पढ़े थे? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, और हमने मेटाफिजिकल एलिमेंट्स कौन से पढ़े थे? 6, 7, 8 और 9। कौन सा रहेगा? 0। ये हमने क्या पढ़े थे? मेटाफिजिकल। तो अब देखो, जितने भी कॉम्बिनेशंस आपके बने गए, कौन सा बनेगा है? 0, 9 इज प्योरली मेंटल। ठीक है, 7, 8 आपके मेंटल बनते हैं। बाकी आप देखो 1 और 8 फिजिकल एंड मेटाफिजिकल, 2 और 7 फिजिकल एंड मेटाफिजिकल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरिडियंस क्या कर रही है? आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, बॉडी से ब्रेन पे जा रहे हो। ब्रेन से बॉडी पर आओगे तो अपोजिट फ्लो हो जाएगा, और जब आप अपोजिट फ्लो कर रहे हो मीन्स ब्रेन का इलाज कर। जब भी हमें ब्रेन के ट्रीटमेंट्स करने होंगे ना, हम अपोजिट फ्लो बना देंगे। ठीक है, लेकिन बॉडी को जब हम हॉरिजॉन्टली काट रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो फिजिकल बॉडी है उसमें जो भी दोष उत्पन्न होंगे फिजिकल बॉडी में, वो वात होंगे, पित्त होंगे, कफ होंगे। तो आप देखो कौन कौन से एलएचएम बने गए हैं? 1, 2 वात है ना, 1+2 क्या है? वात है। 3, 4 क्या है? पित्त है ना। 5, 6 ये कफ है। फिर अगेन 0, 9 और 7, 8। तो अगर ब्रेन में ट्यूमर हो जाए तो क्या है? उसके ब्रेन के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ गई ना, कोई पागल हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा, तो वर्टिकल मेरिडियन। ठीक है, और अगर किसी के ब्रेन में ट्यूमर हो जाए तो 7, 8 का हॉरिजॉन्टल मेरिडियन बनाओगे ना।
लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, वहां पे 360 टोन 459 सिटेशन, तो आपने ब्रेन का ट्रीटमेंट कर दिया ना, समझ गए? ये रीजन है इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली काटने के लिए। फिर हमारी बॉडी में टिश्यूज है, ठीक है, टिश्यूज आर नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल, तो उसके लिए हमने बनाई स्पाइरल मेरिडियन। क्लियर? तो बहुत सारी आपकी देखो, अगर आपकी टिश्यूज खराब होंगे बॉडी में सारी चीजें खराब हो जाएंगी। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हमारे स्पाइरल मेरिडियन में बने। अब मैं बात करने जा रही थी इन्फेक्शन के बारे में, यही कह रहे थे आशु? फिंगर्स में बता, 5-6 पर आ गई हो अपने, ठीक है। देखो, अब ना मैं 0-9 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन बना रही हूँ। तो इसमें आपका 2 ही फिंगर्स बनानी पड़ेगी जस्ट टू शो द साइड। ओके, दिस इज विल बी 0 और ये बन जाएगा 9। ये भी वैसे मैंने बना तो दिया था, नहीं बनाया था, बोर्ड पे बनाया हुआ। तो देखो यहाँ पे इस तरफ जीरो नाइन में क्या करेंगे, ये देखो इस तरफ ये होगा आपका 0, ये 1 एंड 2 दिख रहा है, ओके, देन 3 एंड 4। फिर हम 9 पर आ जाएंगे, 9 होगा यहाँ पर 5 6 7 8 एंड 9। ये आपकी 0-9 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है। Shall I make it on the thumb also? Thumb में this will become 0, 1, 2, 3, 4. See, 0, 9 long horizontal meridian, 0, 1, 2, 3, 4। देखो 2 जॉइंट पर आया। अब ये 9 की तरफ आ जाएंगे, 5, 6 on the joint, 7, 8 and 9. See, इसमें ज्यादा क्लियर समझ में आएगा ना, रेदर देन ड्रॉइंग। 0-9 की लोकेशन आ गई समझ में, ठीक है। अब हम जो है 5-6, पहले 7-8 बता दूं, 5-6 पे मैंने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बताए हैं, टाइम हो रहा है, आज ही बताना चाहती हूँ। ये 7, सॉरी 8 आएगा इस तरह, 8 and 7। नेल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं।
तो 7 से शुरू करेंगे। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। 7, 8 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल फिंगर, कोई भी फिंगर। अभी हम प्रैक्टिस कर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल फिंगर, ठीक है। 5, 6 हॉरिजॉन्टल फिंगर, जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिटेशन है 5, 6 LHM। अब इसके बारे में बहुत ध्यान से सुनो। आप जब भी ब्लड टेस्ट कराते हो तो उसमें एक चीज आती है ESR। CBC में पहले इंक्लूडेड होता था, आजकल उन्होंने ना उसको अलग कर दिया, कहना पड़ता है कि ESR भी होगा, ठीक है। ESR को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट मीन्स रेड सेल। सेडिमेंटेशन, रेट, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR। ये ना अगर किसी का ज्यादा आ जाए तो उसको जॉइंट्स में पेन होते हैं या किसी भी प्रकार का इंफेक्शन होगा, ये डायग्नोज करता है इंफेक्शन को। सिवियर जॉइंट पेन्स होंगे, बॉडी एक होगा, तो अगर किसी को बॉडी एक होने लग जाए, जॉइंट पेन्स होने लग जाए एकदम से ना, पता है क्या आदत होती है, मुझे वो आर्थराइटिस हो गया होगा मैम, सीधा आके मतलब कि पेशेंट ने ना नाम याद रखे हुए मुझे ये बीमारी होगी, है ना। तो सबसे पहले जो है ब्लड टेस्ट में देखो ESR बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप जो है लेफ्ट रिंग फिंगर के अंदर 5, 6 का LHM बनाएंगे। उसके अंदर आप क्या करेंगे, 2, 4 को टोन करेंगे, 3, 6 को सीडेट कर देंगे। ठीक है, क्लियर।
फिर आपकी बॉडी में भगवान मैं करी पेशेंट की जो है आपके पास ऐसे पेशेंट आएंगे जिनके ऑर्गन्स में स्वेलिंग आ जाती है। जब ऑर्गन स्वेल हो जाते हैं, स्वेल्ड, स्वॉलन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेगाली, मेगाली। इसको इसका मतलब होता है कि जो ऑर्गन है वो एनलार्ज हो गया, ठीक है, किडनी स्क्वीज हो जाती है, किडनी हो जाती है, ठीक है। तो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, देखो हर ऑर्गन का एक ना मेडिकल नेम है, ठीक है। जैसे कि लंग्स, लंग्स को बोलते हैं पुल्मोनरी, ठीक है। हार्ट, इसको बोलते हैं कार्डिया। कार्डिया ना एक स्टमक के ओपनिंग स्फिंक्टर को भी बोलते हैं, तो उसमें कार्डियक स्फिंक्टर आ जाता है फिर। पर कार्डियक जहां देखोगे वो हार्ट है, ये तो शायद पता ही है। फिर आप देखोगे लीवर, लीवर को बोलते हैं हिपैटिक। तो जो लंग्स का स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होगा वो कौन होगा, पुल्मोनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। तो अगर किसी को लीवर सिरोसिस है वो कहाँ जाएगा, हिपैटोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। तो जो इनकी रिसर्च करते हैं या उससे रिलेटेड साइंटिस्ट होते हैं उनको हम ऐसे बोलते हैं, जो इनके ऊपर स्टडी करते हैं दे आर लॉजिस्ट, ओके, वो ऐसे आगे ऐड हो जाता है। फिर जो है स्प्लीन का तो वही नाम रहता है, स्प्लीन को नहीं देखेंगे। किडनी, रेनल, या इसकी जो स्टडी करते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरोलॉजिस्ट, जो इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। स्टमक को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिया। देखो इससे ना आप लोगों को बीमारियों को समझने में हेल्प होगी, ठीक है। अब अगर किसी का देखो जो ऑर्गन्स एनलार्ज होते हैं वो जनरली होता है हार्ट, बहुत रेयर होता है। तो अगर हार्ट एनलार्ज हो गया तो हम उसको बोलेंगे कार्डियोमेगाली। लीवर एनलार्ज हो जाता है, ठीक है, उसको बोलेंगे हिपैटोमेगाली। और जनरली एक और होता है स्प्लीन, तो उसको बोलेंगे स्प्लीनोमेगाली। हिपैटोमेगाली, हिपैटिक है ना मेडिकल नेम, तो हिपैटोमेगाली, ठीक है। आप देखना जो ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में मिलेगा, ये अल्ट्रासाउंड होता है तो देखा जाता है कि ऑर्गन्स का शेप और साइज सही है कि नहीं है, और स्ट्रक्चर का हिल जाना, उसके ढांचे का हिल जाना बहुत खतरनाक है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या है, हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग, ठीक है। ढांचा पे कहाँ रखा हमने, 5-6 पे ढांचा रखा ना। तो अगर मैं किसी को कार्डियोमेगाली है, यू नो आई लव कलर्स,
All women love colors. है ना? क्या लिख रही थी कार्डियोमिगैली? कार्डिया की फिंगर कौन सी है? फिंगर नंबर 2 बोलो। सबके सब मुझे उंगलियां दिखाते हो, हाँ? फिंगर I नंबर guess 2। you have network issues, ma'am. हाँ Can't जी। hear you. फिंगर नंबर 2 पे अब हम 5 6 का LHM बनाएंगे। 3 6 0 2 4 5 9 6 8। ठीक है, अब हेपेटिक कौन से फिंगर पर है? Joshi, can you hear her? या Okay. No, there was a break. I mean, your voice broke in between for a few नेटवर्क चला गया seconds. था, एकदम से रिकनेक्ट हो गया। ओके, तो गोइंग बैक टू द व्हाइट बोर्ड, यू नो बेस्ट पार्ट कि व्हाइट बोर्ड जब भी बंद होता है सब कुछ डिलीट हो जाता है। मेरा व्हाइट बोर्ड कह रहा है बहुत हो गया, बंद करो। It's gone again. चलो, हेपेटिक मीन्स कौन सी फिंगर हुई? फिंगर नंबर 3। तो फिंगर नंबर 3 पे क्या करेंगे? फिंगर नंबर 3 पर 5 6 LHM फॉर Is it हेपेटोमेगाली। recording? या रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। Finger number 3, 5 6 LHM for fatty liver enlargement या hepatomegaly. Pen is not working. I don't know. अच्छा, अभी ऑन होगा। फिंगर नंबर 2 के जो बताया वो कार्डियोमेगैली हाँ, हार्ट की फिंगर है ना, लीवर की फिंगर पे लीवर एंलार्जमेंट 5 6 LHM। ठीक है, और स्प्लीन के लिए कहाँ जाओगे? नेटवर्क इशू है। मैम हाँ जी। मैम लीवर पे हम वहां क्यों जा रहे हैं? मतलब यहाँ ये जो लेफ्ट वाला इंडेक्स फिंगर का नीचे वाला हिस्सा लिवर है ना, मतलब। और अगर हॉरिजॉन्टल मेरिडियन देखें तो ये जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं नंबर 5 को ऊपर। तो मेरा तो अभी फिलहाल हो रहा है। सॉरी। इट्स ओके। I guess there are some network issues, ma'am, but Preeti can't hear you. record. I Network missed some portion. Hi. Yeah, a lot of network. इस चीज को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? जो तो That's लॉग important because yes, ma'am, I'll डिस्कस सेम थिंग। revise and मैंने काफी कुछ चीज हाँ, 360 tone 459 sedation. We'll repeat the same class or in the next weekend. yes, that will be useful. Next weekend we can repeat it. Yes.
5 6 ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, नमः शिवाय।